চলো সোনা চলো। খেয়েছে 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 দেখে বলছে নাকি 5টার সময় তাওয়াংয়ের নাকি When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting তো গুড মর্নিং ফ্রম জাং। আর আজকে কিন্তু আমাদের জাংয়ে স্টে একদম কথা ছিল না, কিন্তু কালকে যেহেতু ওয়েদার খারাপ হয়ে গেছে তো বাধ্য হয়ে আমাদের জাংয়ে স্টে করতে হচ্ছে। আর আজকে ডেস্টিনেশন হতে চলেছে জাং থেকে তাওয়াংয়ে আমাদের রুম অলরেডি মানে হোস্টেল অলরেডি বুক করে নিয়েছি। দেন আছে আমাদের মনেস্ট্রি ভিজিট, আর ডিসি অফিসে গিয়ে আমাদের পারমিট ইস্যু করতে হবে, আর লোকাল সাইট সিন আছে, জানি না কতটা হবে। আর সময় বাজে এখন 10:30। শরীর খুব টায়ার্ড, আজকে ইচ্ছা করে আমরা লেটে বেরোচ্ছি কারণ শরীর পারমিট দিচ্ছে না। আর ঠিক আছে, এতটা কালকে হেভি জার্নি ছিল আর এতটা হেক্টিকভাবে আমরা গংকালা কনকার করে এসেছি। আমি বলবো কনকার কারণ এটা আমার কাছে অ্যাচিভমেন্ট। তো চলো আগে একটু স্টিকারটা এখানে মেরে নিই। আর ওইদিকে সৌমিত বসে চা খাচ্ছে, অঙ্কিত চলে এসছে। তো চলো স্টিকারটা মেরে দেন তোমাদের আমি বাকি আপডেট দিচ্ছি। একটা 45 আর আমরা রওনা দিচ্ছি টুয়ার্ডস তাওয়াং। আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হতে চলেছে ডিসি অফিস। ওরে বাবারে, তো ডিসি অফিস বল, ডিসি অফিস দেন আমরা যাব ফার্স্ট পারমিট বানাবো আর সেটাও তোমাদের দেখাতে থাকবো। তো চলো যাওয়া যাক। আর ঠিক আছে, শক্তই আছে, বেশি হলে আরপিএম হাই হয়ে ঠিক আছে। তুই হ্যাঁ চ, একটু চ 1 কিলোমিটার ঠিক হয়ে যাবে। তো চলো এগোনো যাক। জয় বা শিব বা ভোলানাথ তারকেশ্বর, জয় মা কালী। গো অ্যান্ড হিয়ার উই স্টার্ট আওয়ার রাইড টুয়ার্ডস তাওয়াং সিটি এক্সপ্লোর। এখন তাওয়াং থেকে আছি মোটামুটি 38 কিলোমিটার আর আমাদের টাইম লাগবে 1 ঘন্টা। আর এবারে আজকে আমরা একটা নতুন ইনোভেটিভ জিনিস করেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যাদের Q8 আছে আর যাদের V6 আছে তারা আমরা পেয়ারিং করে নিয়েছি, মানে দুজন করে, যাতে কিছু প্রবলেম হলে তারা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। এই মোটাকে বল যেতে, হ্যাঁ চলো সোনা চলো। তো দাঁড়াবি, মোটাকে বল বেশি চাপতে না, ঘরে থাকতে, চাকা বল এগোতে না, যাই থাক মোটাকে বল। ও টায়ার পড়ে গেছে গাড়িটায়, মোটার টায়ার না, সামনে গাড়িটা। যা মোটা কল বেরোতে, মানে গাড়িটা বেরোলে মোটা কলে বেরোতে। গাড়ি আসছে, ট্রাক দূরে পরপর ট্রাক। ওয়েলকাম টু তাওয়াং লেখা আছে, হ্যাঁ ওটা লেখা থাকবে, ওটা তুলবো। এটা তো গেট বানা, এগুলো কত গেট দেখবো, এরকম গেট দেখেই গেলাম। বাম্পার আছে কিন্তু দূরে একটা। এ ভাই অনেক কাছে, বড় বেঁচে গেছি। এই খেয়েছে সৌমিতা খেয়েছে না, বিশাল জোরে আমি আওয়াজ পেয়েছি। আর্মি বেসটা সুন্দর। আমি ম্যাপ মারছি দাঁড়া। কি তাসি হোমস্টে তাই তো নাকি ডিসি অফিস? ডিসি অফিস মারলো তাই তো, ডিসি অফিস তাওয়াং ভাই। আর 1 কিলোমিটার স্ট্রেট, আর 6 কিলোমিটার। We are on the right track.
আরে আর একটু দেরি আছে, দাঁড়াও চলো। আর মাত্র 2.5 কিলোমিটার অনলি 2 কিলোমিটারই ধরো। ওই 500 মিটার হয়তো তোমার এ হবে ডিসি অফিস। এই পাতার গন্ধটা আমার হেভি লাগে, যখন রান্না করে পাতায় ওই ঘাস পুড়িয়ে। এবার গেটটা আসবে, চলো পেট্রোল পাম্প পড়বে একটা, তারপর ওই তো ও পেট্রোল দেখে নিচ্ছি। তেল ভরবে কেউ? ঠিক আছে বলে দেন, ভারত পেট্রোলিয়াম যেটা। ওয়াশ করেই লাভ কি, ক্রস করেছিল এই হিমালয়ানটা। তো এখন আছি আমরা ডিসি অফিসের সামনে, আর এটা হচ্ছে তোমার ডিসি অফিস। ভেতরে তোমাদের আমি দেখতে পাচ্ছ। আর যখন টাওয়াং এন্ট্রি করেছি তখন আমি ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার ব্যাটারি ড্রেন হয়ে গেছিলো। তো ব্যাটারি চেঞ্জ করে আর এখন বাজে সময় 3:10। আর এখান থেকে বলছে নাকি 5টার সময় টাওয়াংয়ের নাকি তোমার এখান থেকে নাকি ইস্যু হবে পারমিট ফর বুমলা। তো জানি না সেটা কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে। তো সৌমিতদা ভেতরে গেছে কথা বলতে, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আর কি আপডেট হচ্ছে সেটা আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভিডিওতে জানিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। তো চলো নেক্সট আপডেটের জন্য পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখতে থাকো। তো কারেন্ট যেটা আপডেট সেটা হচ্ছে ডিসি অফিস 5টার পর খোলে। তো আমরা এর মাঝে কি করব, আমরা হোটেলে গিয়ে একটু চেঞ্জ হয়ে ফ্রেশ হয়ে ফার্স্ট যাবো আমাদের সাইট সিন, যেটা হচ্ছে বুদ্ধা মনেস্ট্রি। আর দেন আরেকটা সাইট সিন আছে সামনে দিয়ে। আরেকটা কি সাইট সিন আছে? বুদ্ধা মনেস্ট্রি আর তাওয়াং মনেস্ট্রি ফার্স্ট, দেন হচ্ছে বুদ্ধা স্ট্যাচু। ঠিক আছে হ্যাঁ, আর দেন এখান থেকে আসা আবার। হ্যাঁ ওয়ার মেমোরিয়াল কালকে 5টার মধ্যে ক্লোজ হয়ে যাবে। তো আজ তো 5টার মধ্যে ক্লোজ হয়ে যাবে। তো ওয়ার মেমোরিয়ালটা আমাদের কালকে। হ্যাঁ হোলি ফলস আছে কালকে, ফেরার সময় এ আছে আবার। তাই মনেস্ট্রিটা করে মানে কী বলে ওই ওয়ার মেমোরিয়ালটা করে চলে আসবো রুমে। তো কালকে কিন্তু একটা বড় ট্যুর আছে। তো চলো অন দ্য ওয়ে তোমার সাথে আবার রুমে গিয়ে যখন আমরা আবার বেরোবো টুয়ার্ডস মনেস্ট্রি, তাওয়াং মনেস্ট্রি, তোমাদের আমি আপডেট দিতে থাকছি। দেখতে পাচ্ছ দ্য জায়ান্ট বুদ্ধা স্ট্যাচু ওপরে। আর একটু পরেই কিন্তু আমরা সেখানে যাব ফটোশ্যুট করতে, ঘুরতে। আর সেটা কিন্তু আমি প্রপারলি শো করব। রাইট হ্যাঁ। তো চলো যাওয়া যাক ওপরে, আর দেন বাকি আপডেট আমি রুমে গিয়ে দিচ্ছি। কেন? তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমারই শোনা, আমাদের রুম। আর এটা কিন্তু অনেক বড় রুম আছে, গদি পেতে দিয়েছে। আর এটা কিন্তু ডাইনিং রুমটা দেখো, তোমাদের দেখাচ্ছি চলো এদিকে। চলো ডাইনিং রুমটা তোমাদের দেখাই। তো চলো আচ্ছা এটা এবালা সিগারেট পিনে গেলে। আচ্ছা যারা স্মোক করছো তারা এখানে বসে স্মোকিং জোন হিসাব মতো। হ্যাঁ স্মোকিং জোন, সরি এই শু খুলে যেতে হবে প্লিজ। তো এটা হচ্ছে বসে খাওয়ার বা আড্ডা মারার জোন। তো চলো শুটা খুলে আমি দেন বাকিটা জানাচ্ছি তোমাদের। 2000 years later. যেটা ছিল আমাদের ডিসি অফিসে সেটা করা হয়ে গেছে। আর এবার যাচ্ছি আমরা টুয়ার্ডস ওয়ার মেমোরিয়াল, ওখানে আরেকটা দিতে হবে। তো আমি একটু তাড়াতাড়ি যাব বলে হয়তো প্রপারলি ব্লগটা এই জায়গাটা শ্যুট করতে পারছি না। তো আমি রুমে গিয়ে অল ডিটেলসে তোমাদের জানাচ্ছি সব কিছু। শোটা কিন্তু এখানে হয়, আমরা আজকে মিস করেছি, কিন্তু চেষ্টা করবো কালকে করার। তো চলো আগে ওয়ার মেমোরিয়াল ঢুকি, দেন তোমাদের বাকি আপডেট আমি দিতে যাই। সামনে হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল। হ্যাঁ ওয়ার মেমোরিয়াল ঢুকে কনফিউজিং না রাস্তা, হ্যাঁ আমি ভুলে গেছি, 2-3বার হারিয়ে গেছি। তো চলো তাতে আইএলপি কেন পুরো সেটটাই। হ্যাঁ সেটটা আমি তোকে জলদি দে। তো চলো বাকি আপডেট আমি পরে দিচ্ছি। আমি নিয়ে চলে তুই জমা করেছিস তোরটা? তুই নিয়ে যা তাহলে একবারে নিয়ে যা। তো চলো বাকিটা করে আপডেট দিচ্ছি। ঘোরো ও দাঁড়া, আর সময় দেবে না। তোরটা ময়নাকে জমা করিস তাই তো? কিছু বললো কলেজ খোলা থাকে? হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল। আর এটা অলরেডি সিদ্ধার্থ চলে গেছে ওখানে তোমার সাবমিট করতে। আমি দূর থেকে ভিডিও করছি কারণ সামনে থেকে ভিডিও করা অ্যালাউ না। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হিস্টোরিক্যাল প্লেস ওয়ার মেমোরিয়াল, যেমন যা দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে। খুবই সুন্দর প্লেস।
আর এত সুন্দর প্লেস আমি কি বলবো। আর বিগ থ্যাঙ্কস টু ইন্ডিয়ান আর্মি। আর লেখা আছে বীরাঙ্গন। এটা খুবই কিন্তু সবাই স্ট্যাচু আছে, আর আম্বেদকর স্ট্যাচু সামনে। আর এটা হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল। আশা করি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, একটা সুন্দর জায়গা কিন্তু ওয়ার মেমোরিয়ালটা এখানে। তো এটা এন্ট্রি গেট, আমি ওপরে উঠবো না, জুতো পরে আছি। আই রেসপেক্ট ইন্ডিয়ান আর্মি, তো আমি চাই না জুতো পরে উঠতে। তো আমি এখান থেকে তোমাদের ভিউটা দেখাচ্ছি, আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাও আমি ফোনেও একবার শর্টসটা নেব, আর বাকি আপডেট আমি দিতে থাকছি। চলো। पुरातन काल में यहाँ के एक अत्यंत प्रभावशाली राजा रहे कलाबाग को, जिनके शौर्य और समाज कल्याण की गाथाएं आज भी मेरे और पूर्ण अरुणाचल प्रदेश निवासियों के दिलो दिमाग में सजीव है। भारत की आजादी से काफी पहले सन 1914 में ही मेरी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हो गई थी। सदी के तीसरे चौथे दशकों में ही अंग्रेजी प्रशासन के अनेकों पर्वतारोहण दल और अभियान असम के मैदानों से मेरे यहाँ भ्रमण पर आए। ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन ने मेरी उत्तरी सीमाओं को तिब्बत के साथ निर्धारित कर दिया था, जिसे अब मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये है न हमारा पड़ोसी देश, जो न जाने क्यों नापाक हरकतें कर फर्जी दावे करता रहा है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त सन 1947 पूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ मेरा भी नवनीत हो गया। सदियों की पराधीनता के बाद हम एक बार फिर आजाद हुए। खुले आसमान में लहराया हमारे स्वाभिमान, अखंडता और पहचान का प्रतीक तिरंगा। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। वही उत्तर में मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत के उस पार 1949 में चीनी गणराज्य का जन्म हुआ। चीन की साम्राज्य विस्तार नीति के विडंबना के फलस्वरूप अगले वर्ष तिब्बत भी उसकी गिरफ्त में आ गया। 14वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वाधीनता का आंदोलन जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा का गठन हुआ, जो भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बना और अंततः इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 17 जनवरी 1951 को मेजर रामेगो बॉब खातिन MCMVE ने 5 असम राइफल्स के 200 सैनिकों के साथ 4 द्वार से मेरी सरसमी के लिए कूच किया। दुर्गम इलाकों से होकर ठंड, बर्फ, जंगलों को लांघते हुए वे 6 फरवरी 1951 को तवांग पहुंचे और इस प्रकार मेजर बॉब खातिन के भरसक प्रयासों के चलते फरवरी 1951 में मेरे यहाँ भारतीय प्रशासन की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। 14 फरवरी 1951 के स्वर्णिम दिन को मैं और मेरे निवासी कभी ना भूल पाएंगे। शत शत नमन इस अधिकारी को, जिसकी हिम्मत और जज्बे को मैं और पूर्ण भारतवर्ष सलाम करते हैं। नई थी आजाद राहें और उन पर हम चले, कल की बातें भूलकर नए सपने आंखों में पले। हमने चाहा हम बढ़ेंगे एक नई मंजिल की ओर, पर थमी बंसी अमर है, गूंजा रणभेरी का शोर। भूमि पर नजरें गड़ी थी, दुश्मन ने चालें चली, सरहदों को है बचाना, देश में थी खलबली। चीनी दमनकारी नीतियों के कारण मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत में 1 दशक तक हिंसा की आंधी चली, खून की नदियां बही और उसके स्वाधीनता संग्राम को क्रूरता से कुचल दिया गया। चीन के नरसंहार से बचने के लिए दलाई लामा ने भारतवर्ष में शरण ली और निर्वासित सरकार की स्थापना की। 31 मार्च 1959 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ
खिंजे माने इलाके से भारत में प्रवेश किया। दलाई लामा के भारत में आते ही भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया, क्योंकि भारत द्वारा शरण दिए जाने को पड़ोसी मुल्क ने सकारात्मक रूप से नहीं देखा। बस कुछ ही समय गुजरा और आया साल 1962 सितंबर का महीना। नामकाचू के इलाके में शुरू हो गई छिड़पुट में। भारत ने रणनीतिक तौर पर पहले से ही फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सरहदों पर पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी थी। हॉलोकॉस्ट से आगे बढ़ते हुए मेजर चौधरी ने अपने साथियों के साथ खादरा के पहाड़ों की ओर कूच कर दिया। समधार पहाड़ी की जड़ में पहले सिख बटालियन के कैप्टन महावीर प्रसाद ने हॉलोकॉस्ट पर मजबूत किलेबंदी की, लेकिन भयानक रूप से हमला करते हुए 600 चीनी सैनिक हॉलोकॉस्ट को घेरते हुए समधार पर्वतमाला पर पहुंचे। चीनी फौज ने हमला रिंच की ओर से हर बार जोरदार हमला कर दिया है। मेजर पद के नेतृत्व में हमारे जवान उनके नापाक मंसूबों को जमकर चुनौती दे रहे हैं। हमने काफी नुकसान पहुंचाया है और हमारे भी कई जवान शहीद हो गए सर। जब तक गोला पोस्ट पर महावीर प्रसाद जिंदा है, इस पोस्ट पर भारतीय झंडा लहराता रहेगा। मुश्किलों से घबराए बिना 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बहादुर सैनिकों ने वीरतापूर्ण जवाबी हमले किए। इस लड़ाई में 2 राजपूत, 9 पंजाब, 4 ग्रेनेडियर्स और 19 गुरखा राइफल्स पलटनों ने अपने अद्वितीय शौर्य का लोहा मनवाया और 20 अक्टूबर 1962 के दिन लड़ी गई नामकाचू की ऐतिहासिक लड़ाई, जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में वर्णित है। हमारे सैनिक आखिरी सांस अंतिम गोली तक जी जान से लड़े और न जाने कितनी ही शौर्य और बलिदान की अविस्मरणीय गाथाएं लिख डाली। नामकाचू घाटी का वो रक्त रंजित मंजर मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं। अक्टूबर 1962 मुगला पर भी चीनी सेना ने हमला किया। 15,200 फीट की ऊंचाई पर सर्द हवाओं के बीच मुगला की लड़ाई छिड़ गई। हमारी चौकी पर चीनियों ने एक के बाद एक लगातार 3 हमले किए। जाबाज पहले सिख पलटन के सूबेदार जोगिंदर सिंह ने दुश्मन को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया। क्या खबर है? शाबाश जाबाजो, तुम किसी तरह थोड़ी देर और मोर्चा संभाले रखो, हम रिइंफोर्समेंट भेज रहे हैं। हमले की तीसरी लहर को टक्कर देते देते गोला बारूद कम पड़ने पर भी हार नहीं मानी। साथी कम होते गए मगर हौसला नहीं। बंकरों से बाहर निकलकर जोगिंदर सिंह और उनके प्लाटून के सैनिक आखिरी सांस और अंतिम गोली तक लड़ने लगे। उनके चंद साथियों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कई 100 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। चीनियों के निरंतर हमलों में जोगिंदर सिंह आखिरी दम तक लड़ते रहे और पूरी तरह घायल हो गए। अपने साहस और वीरता के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेरे वतन मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नवंबर का महीना, भारतीय सेना ने अभी तक चीन को अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवा लिया था। पर
चीनी सैनिकों की तादाद अधिक होने के कारण वो मेरी धरती पर आगे बढ़ने में सफल रहे। हमारे सैनिक अदम्य साहस का परिचय देते रहे। ऐसी ही एक गाथा है जसवंतगढ़ की जंग की भी। 17 नवंबर 1962 फोर्ट गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी नूरानांग ब्रिज पर मोर्चा संभाली थी। दुश्मन हमले पर हमले करता रहा और किसी तरह से हमारे बंकरों के करीब मीडियम मशीन गन स्थापित करने में सफल रहा। ये गन अल्फा कंपनी की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती थी। ऐसी स्थिति में वीर नायकों की इस छोटी टुकड़ी, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने अदम्य साहस का उदाहरण देते हुए 72 घंटों तक आश्चर्यजनक रूप से चीनी सेना को रोक कर रखा। युद्ध में 300 से अधिक चीनी सैनिक निष्प्रभावित किए गए, जबकि फोर्ट गढ़वाल के 2 जाबाज वीर गति को प्राप्त हुए और अन्य 8 घायल हुए। इस जंग में विजय राइफलमैन जसवंत सिंह के शौर्य की हुई और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया एवं साहस की मूर्ति नेगी और गोसाई को वीर चक्र प्रदान किए गए। याद रहे, युद्ध के बाद से इस नूरानांग युद्ध क्षेत्र को जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के दौरान सेना तो भरसक लड़ी ही, साथ साथ सेना और नूरानांग जैसे कई गांव के स्थानीय निवासियों ने भी साहस और देशभक्ति का भरपूर परिचय दिया। लोगों ने खतरों के समय भी सेना की हर संभव मदद की, भोजन, दवाइयां इत्यादि सैनिकों को उपलब्ध करवाया। मेरे भारत के न जाने कितने सपूतों की जान बचाई। नवंबर 1962 के उत्तरार्ध से सेला की पहाड़ियों में युद्ध लड़ा गया। सेला और नूरानांग के जंग के दृश्य मानो आज भी मेरी आंखों के सामने सजग सजीव है। देश की एक एक इंच भूमि और साथ ही साथ देश की भावनाओं की भी रक्षा की। इस युद्ध के दौरान नामकाजू, जसवंतगढ़, न्यूमटा, खिंजेवाने, सुरबसांबा, मोर्शे और चाकू में भारतीय सेना ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। तबा, बुमला, सेला और बोमबिला की सरजमी गवाह है। दृढ़ संकल्प, धीरज और फौलादी इरादों से भरी कहानियों की, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती रहेगी। 1962 में किए गए चीन के विश्वासघात के बाद तवांग क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना रुख बदला और सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी, ताकि चीनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और सैन्य स्थिति सुदृढ़ बनाई जाए। लेकिन दुश्मन फिर किसी नई साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। साल 1986 चीनी सैनिकों ने यूरोला सेक्टर में सुंदरांग में फिर घुसपैठ कर धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन दृढ़ संकल्प वाली भारतीय सेना ने तुरंत निर्णय लेकर चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत ने चीन और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे डाला कि भारत विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए संवेदनशील इलाकों की हिफाजत के लिए 1986 से ऑपरेशन टाइगर प्रारंभ हुआ, जिसके चलते मेरे इलाकों की सरहद शांतिपूर्ण रही। जिस तरह मैंने युद्ध देखे हैं, उसी तरह देखा है समझौतों का दौर। गुमला में ही
औपचारिक रूप से बॉर्डर पर्सनल मीटिंग मैकेनिज्म 1991 में स्थापित किया गया। 1993, 1996, 2005, 2013 में हुए समझौतों के दायरे में दोनों पक्षों ने समझदारी से अनगिनत मसलों को सहमति से सुलझाया। युद्धोपराध, शांति, अमन चैन, ये सब कुछ हुआ मेरी धरती पर। दुश्मन जो नजरें गड़ाए बैठा है मेरी वादियों पर, इसमें क्या बताएं कि उसका कसूर कितना है। मेरे पहाड़ों की सुंदरता ही कुछ ऐसी है, उन पर खिला हुआ हर फूल मशहूर कितना है। मेरी वादियों में मिलती हैं अनगिनत रंग बिरंगे फूलों और वनस्पतियों की प्रजातियां, घने जंगलों में बिखरी नायाब औषधियां, बहता है नदियों का पानी कलकल करता। इस पूरे मंजर का आनंद लेने आते हैं देश विदेश के हजारों सैलानी। मेरे यहाँ बर्फीली चोटियां भी हैं जो लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। आज मेरे कोने कोने में विकास की लहर पहुंच रही है, संपर्क के साधन बढ़े हैं और ये सूचक है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का। वार्षिक तवांग महोत्सव, मैत्री दिवस, तवांग मैराथन, तीरंदाजी प्रतियोगिता और रस्साकसी जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन अब आम बात है। जुलाई 2024 में मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम मिला, जिसे फीफा भी प्रमाणित करने से खुद को न रोक सका। मेरे विकास की गतिविधियों से तमाम वासियों के जीवन में बेजोड़ बदलाव आया है। साथ ही साथ सुनहरे भविष्य की भी नींव रखी जा रही है। मेरी भूमि है सांस्कृतिक और यहाँ के बौद्ध विहार की आध्यात्मिकता समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दान और समाज सेवा मेरे मोपाओं का प्रमुख गुण है। इसी गुण को आगे और समृद्ध करते हुए सार्थक कार्य कर रही हैं यहाँ की कुछ संस्थाएं, जिसमें मंजूश्री, विद्याश्री, महाबोधि इत्यादि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तवांग की संस्कृति और इतिहास पर शोध को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। मेरी समृद्ध जनजातीय विरासत को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वावधान में अनेकों नाटकों का आयोजन संपूर्ण भारत एवं विश्व भर में किया जा रहा है। गोरसन कोरा, लोसर जैसे त्योहार खुशी और उत्साह के संदेश लाते हैं और इनके चलते मेरी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत बरकरार है। इन सभी उत्सवों का आयोजन मेरे निवासी, प्रशासन और भारतीय सेना एकजुट होकर करते हैं। सच्चा साथ, सहयोग और देश प्रेम सब कुछ एक साथ मेरे यहाँ। प्रगति, आर्थिक और सामाजिक विकास मेरी कहानी के मुख्य किरदार रहे हैं। जो मैं आज हूँ उसमें पूर्ण भारतवर्ष, अरुणाचल प्रदेश सरकार, भारतीय सेना और निस्संदेह मेरे नागरिकों का बहुमूल्य योगदान है। मेरी कहानी का अहम अध्याय है तवांग वॉर मेमोरियल, जिसकी स्थापना 1999 में स्थानीय लोगों और आर्मी ने मिलकर की। इसमें 1962 में वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रत्येक योद्धा के नाम लिखे हैं। 2024 में स्मारक परिसर में मेजर वॉक खातिंग संग्रहालय का निर्माण एवं तवांग एम्फी थिएटर का रूपांतरण भी हुआ। भारतीय सेना मेरे विकास और शांतिपूर्ण प्रगति का अभिन्न अंग रही है। तवांग वॉर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए बिना तो मेरी सैर अधूरी है। यहाँ का नवनिर्मित सेला टनल ट्रांस अरुणाचल हाईवे अपने साथ लाए हैं पर्यटन का नया दौर। तवांग मोनेस्ट्री, खिंजे माने के होली ट्री, सेमिथान की विशेष परंपराएं, यूनरोला, बूमला, होली वाटरफॉल्स का पावन पूजनीय जल,
प्रेम की कल कल बहती नदी, गर्म पानी के चश्मे और न जाने कितने मनमोहक पर्यटक स्थल और नजारे मुझे हर पल शोभायमान करते हैं। इंटरनेट के दौर में दूर दराज के गांव भी मानो पास आ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की अनन्य भविष्यवादी योजनाओं से प्रगति और विकास को एक नई गति मिली है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और नई शिक्षा का आलोक दोनों के फल स्वरूप प्रकाशित हो रहा है मेरा घर, आंगन और पूरा प्रदेश। ये धरती है उगते हुए सूरज की, ये धरती है विकास की, ये धरती है संपूर्ण विश्व में भारत के आह्लाद की। मेरे निवासी और हमारी जाबाज फौज तैयार है यहां सरहद पर किसी भी चुनौती को स्वीकारने के लिए। मैं संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतीक हूं और देश की अखंडता एवं शक्ति का संदेश संपूर्ण विश्व जगत को आने वाली सदियों में भी देता रहूंगा, क्योंकि सीखे हैं गुजरे दिनों से सबक हमने, अपने कर्मों से पाई है चेहरों पर चमक हमने। कभी न होने देंगे धूमिल रंग इस तिरंगे का, चखा है अपने मादरे वतन का नमक हमने। सीने में जोश, दिलों में उमंग लिए हैं आते, हम भारत के सच्चे सपूत हैं कहलाते। मातृभूमि का कर्ज चुकाने की ललक में शौर्य की राह पर हम सब वर्ष निभाते जाते। क्यों न हो कुर्बान, जान क्यों न करे निसार, अपनी मातृभूमि से खुद से भी ज्यादा करें प्यार। हम हैं भारतीय, हमारी है यही पहचान। देश की माटी तिलक लगाना, आन बान और शान। नजरों में बसा हुआ तिरंगा और दिल में सच्चा हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान। जीवन था हमको वो देश पे हमने वार दिया। जो कर्ज था अपनी তো এখন আছি আমরা নেহরু মার্কেটের সামনে, আর সময় বাজে এখন সন্ধে 8:50। তার মধ্যে অলরেডি মার্কেট ক্লোজ, যেরকম আমি তোমাদের দেখাবো। জানি না বাইরে কতটা আসছে, বাইরে কিন্তু পুরো ক্লোজ। আর আমরা অনেক কষ্টে একটা রেস্টুরেন্ট পেয়েছি,
সেখানে আমরা আজকে ডিনারটা কমপ্লিট করব। আর কালকে কিন্তু আমাদের ওয়ান অফ দ্য সেকেন্ড টাফেস্ট জার্নি, যেটা হচ্ছে বুমলা পাস। পারমিট ডান, কাল সকালে কালেক্ট করে নেবো। তো আর জাস্ট রেস্টুরেন্টটা একবার দেখো, এত সুন্দর। জাস্ট দেখো কি সুন্দর দেখো রেস্টুরেন্টটা। তো চলো আজকে ডিনারটা এখানে কমপ্লিট করি, কী কী খাচ্ছি সেটাও তোমাদের দেখাবো। আর রুমে গিয়ে প্রপারলি আমি তোমাকে আপডেট দিচ্ছি তোমাদের, যে বুমলা যাওয়ার জন্য কি কি পারমিট লাগবে আর টাইমিংয়ের কি ব্যাপার আছে, সেটাও কিন্তু আমি রুমে গিয়ে প্রপারলি তোমাদের জানাচ্ছি। তো চলো ডিনারের সময় তোমাদের দেখা হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে আজকে আমাদের ডিনার খাওয়ার জায়গাটা, যা দেখতে পাচ্ছ সামনে। আর এটা কিন্তু একদম নেহরু মার্কেটের সামনে। আর রাত্রির বাজে এখন 10টা। তো চলো রুমে যাই, দেন বাকি আপডেট আমি দিচ্ছি। I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way.